female, menstrual cycle, the terms related to fetus development like implantation, placentation, parturition, ये सब terms syllabus का हिस्सा है. Then reproductive health of a female and sexually transmitted disease, and that is the same homework for you during this Diwali break. Okay, enjoy your Diwali, do not burn crackers, लेकिन पढ़िएगा जरूर बच्चे. दिवाली से नेक्स्ट डे जब भी आप फ्री हो जाएं अपने फंक्शंस के बाद पढ़ाई जरूर करें, अपनी प्रॉब्लम जरूर लेकर आए. लिमिटेड क्लासेस आर लेफ्ट बच्चे ओनली. You know, before your exam, I think your exams are starting from 3rd of December. So I think we got only 4 classes. In that we have to take the test as well as we have to discuss the problems. Okay, so do prepare your problems. Our environment is quite a simple topic. It's a simple chapter, but it will, consist of only 3 to 4 marks only. But these 2 chapters, the heredity and evolution, which we are going to complete, sooner I think in this lecture or maybe some part of the next lecture as well. Okay, so do, study these topics. How do organisms reproduce? The half one, which is the part of your syllabus, and heredity and evolution. Very, very, dedicatedly. Give your full dedication to these chapters. These chapters will compose of 12 to 15 marks in board exam, and that's a lot of marks. ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा. कोई प्रॉब्लम हो तो उसे ले आइएगा बच्चे. डायग्राम्स करने हैं आपने 2 उसमें, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल. स्पर्म और ओवम का डिफरेंस जरूर पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए. In heredity and evolution, today we'll discuss the type of traits. Yes, बोलिए बेटा. क्या हुआ गुरजन बेटा? 2 type of traits are there बच्चे. One is inherited traits and another one acquired traits. As their name indicates, inherit means by birth. Bachche. Inherited means inborn, by birth. The traits which transmit, which possessed by a person, by an organism, by birth, those traits are known as inherited traits. वो traits बच्चे जो एक organism में by birth आते हैं, those traits are referred as inherited traits. For example, skin color, blood group, hair color, hair shape, height, all those traits are inherited. They came by birth. Some people used to say that skin color is not an inherited trait, bache. Why? If you keep on roaming in the sun, your skin color will become dark. That's a different case, bache. That's a situation thing. अगर बच्चे आपके अंदर गोरे रंग का जीन है बच्चे, आप धूप में जा रहे हैं, अगर आप दोबारा से अच्छी कंडीशन में रहेंगे, जैसे कि आप अपने आप को छाया में रखें, एसी में रहें, जीवन आपका बड़ा सकुशल हो जाए, then you will again change your color to your basic genetic color बच्चे. That is the fact, and this is going to happen with you now as well. आपके मदर जरूर कहते होंगे आपको कि सर्दियों में मेरे बच्चे का रंग निखर जाता है. Because in winters we do not, get caught up with the sunlight that much. But in summers, बच्चे, in our country, in our side, in the North India, at 6 a.m. the sun will be there at the full exposure. अगर आप सनबाथ करना चाहते हैं तो 6 बजे पूरा गर्मियों में पूरी टेम्परेचर सोरिंग होता है बच्चे. So that's a temporary change, but the basic skin tone came from birth. Yeah, color of eyes बच्चे. Yes. No बच्चे. बेटा actually क्या है? What is the difference in the eye color? In the iris, the color cells are there बच्चे, cone cells. That will affect. Actually, you can't differentiate between black and brown. I have brown eyes, but if we look at from a distance, obviously we do not, soar into the eyes of a person. The color appears to us is brown, but दूर से देखने मेरी eyes black ही दिखती है. So these are inherited traits. They acquired by a person by birth only.
they are possessed by a person by birth only. Whereas the second one, acquired, as the name indicates, which a person acquire after birth. How? Use and disuse of organs. How? And the example of it is, you must have seen Tiger Shroff. देखा है? Salman Khan. In every movie which he has done, he gave a shot. What? He removed his shirt. Why he is removing his shirt? To show his muscular body. We have the same muscles, but what is the difference? Those muscles are not well developed. Everybody has a kind of pack. If you are a health conscious or a fitness freak, you know that a person's muscles, abdominal muscles, are grown into packs, like 4-pack abs, 6-pack abs, 8-pack abs, 10-pack abs. That is the last. And then here comes the family pack, isn't it? Most of us have a family pack. But the abs, they grow when we do the abs exercise, at a very regular basis. Maintenance of those abs is very tough thing. It's very hard. So बच्चे क्या है वो? Use and disuse of organ है. We all have a bicep muscle, but some has a grown one, well matured. Why? They keep on use and disusing it, बच्चे. So that will brings us an acquired trait. For example, handwriting. Every teacher suggests you that do write your homework, prepare your homework in writing only, so that your handwriting can be improved. गौरव जी, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं, आप जा सकते हैं. ठीक है? ऐसा तो कुछ नहीं है उसके बैग में कि आप उसे घूरे जा रहे हैं. तो ये बच्चे एक्वायर्ड ट्रेट है. हैंडराइटिंग, स्विमिंग, ये एक्वायर्ड ट्रेट है. जो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करता है, दैट पर्सन विल बी मोर बिकम मैच्योर्ड इन इट. जितना प्रैक्टिस हम लीव कर देंगे, वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट मच गुड. सो दीज आर एक्वायर्ड ट्रेट. स्विमिंग, डांसिंग, वॉकिंग, ऑल दीज आर एक्वायर्ड ट्रेट्स. ये सब एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं. हम बाद में बच्चे करते हैं. कैसे? हैबिट्स से, आदतों से. कौन साइकिल अच्छी चलानी जानता है बच्चे? जिसका हैबिट होगी साइकिल चलाने. आपने सीख लिया, आपने 3-4 साल साइकिल नहीं चलाई, आप उतने अच्छे प्रॉपरली उसे नहीं चला पाएंगे, बिकॉज इट इज एन एक्वायर्ड ट्रेट. आउट ऑफ दीज, इनहेरिटेड ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेबल एंड दे आर. और इस पर क्वेश्चन आता है बच्चे बोर्ड में, और इस बार आने के पूरे चांसेस भी हैं. Why some traits are only inherited or can pass on from one generation to the next, whereas others don't? The reason is self. Inherited traits are related to gametes. Gametes are also known as germ cells. They are also known as sex cells, reproductive cells. Sperm in case of males and ovum in case of females. These are sex cells, बच्चे. These traits are the part of germ cells, and germ cells carry the characters from parents to their offspring. ये वो बस है बच्चे जो ट्रांसपोर्ट कर रही है. किस फॉर्म में कर रही है? क्रोमोसोम की फॉर्म में. Half chromosomes came from mother and half came from father. Both these chromosome units combine together, fuse together and form complete unit known as diploid cell zygote. Whereas acquired traits are the part of somatic cells. These are non-regenerative cells. That is why they are non-transmittable. That's why they do not pass. एक स्विमर का बच्चा स्विमर होगा ये जरूरी नहीं है. क्यों? स्विमिंग एक acquired trait है. Michael Phelps, he is the athlete who won maximum number of medals in an Olympic event, as well as total Olympic medal. एक ओलंपिक इवेंट में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला इंसान भी वही है
और he has a feet of 17 number. That is an advantage बेटा. फीट की बहुत हेल्प होती है स्विमिंग में, उसे बार बार आपको अप एंड डाउन रिदमिकली पुश एंड डाउन कर पुश एंड पुल करना पड़ता है, उसे पुश मिलता है आगे तो इंसान आगे बढ़ने के लिए. उसके हाथ ऑलमोस्ट हमारे केस से 1.5 गुना है, तो एडवांटेज है बच्चे. ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो बच्चे से फायदा मिलता है. बच्चे माइकल फेलिप्स है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स लिविंग ऑन द अर्थ. क्या बच्चे स्विमर है वो, लेकिन उसका बच्चा स्विमर हो ये जरूरी नहीं है. सचिन तेंदुलकर, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एंड बेस्ट इंडियन बैट्समैन वी हैव, बट हिज सन अर्जुन तेंदुलकर इज अ bowler. He is a left arm fast bowler because that is an acquired trait beta. Your father, mother, if your father is a businessman, he will be very good at maths. He can make an interest of any money at fingertips, but their son or daughter will be good at maths equally. That is not necessary, है ना. और तुम देख लो अपने आप को बच्चे, है ना, तुम किनके बेटे हो या बेटियां हो, और जो तुम देखो कैसे हो, वो एक्वायर्ड ट्रेट है. ठीक है, आप जितना कोशिश करेंगे उतना अपने आप को अच्छा बेहतर बना पाएंगे बच्चे. दैट इज एन एक्वायर्ड ट्रेट. ये सोमैटिक सेल से रिलेटेड है, नॉर्मल बॉडी सेल से. इससे कैरेक्टर पास ऑन नहीं होते. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है इस बार के लिए, बिकॉज द चैप्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे. वन मोर थिंग, इसमें आपको एग्जाम्पल देके क्वेश्चन भी पूछ लेंगे. For example, if a person X is a very good cyclist, but when he got married, he has a son. His son, when parturate or have a birth, he didn't know about the cycling. जब बच्चा पैदा वो साइकिलिंग के बारे में जानता ही नहीं था. क्यों? Cycling is a acquired trait. That's why they traits. Next. इसके बाद हमने पढ़ना है बच्चे सेक्स डिटर्मिनेशन. 3 मार्क का क्वेश्चन इन एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर बुक. 4 to 5 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली. ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? To determine the sex of a young one or a new individual is known as sex determination. इसका नाम ही इसकी डेफिनेशन है. Sex means gender. किसी भी एक न्यूली बॉर्न ऑर्गेनिज्म का, नए इंडिविजुअल का जेंडर जानना क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ 3 काइंड. 3 टाइप की होती है, जिसमें से सिर्फ एक ही आपके सिलेबस में और एक का हल्का सा एक इंट्रोडक्शन है बस. फर्स्ट इज इन्वायरमेंटल. एज इट्स नेम इंडिकेट्स, the sex determination in which environmental factors determine the sex, determine the gender of an individual. For example, there is a turtle named as Cryozema picta. आप नाम छोड़ सकते हैं. Cryozema picta. It has temperature impact on its hatching of eggs. At high temperature, it gives rise to females, and at low temperature it will give rise to males. It gives eggs. बच्चे eggs होते हैं. turtles usually क्या है? oviparous. they lay eggs. ठीक है, तो जब बच्चे ये एग ले करते हैं तो इसमें हाई टेम्परेचर पर क्या होते हैं? ज्यादा फीमेल, और लो टेम्परेचर पर मेल. एग की हैचिंग के टाइम पर होता है, जब एग हैच करेंगे बच्चे. अगर टेम्परेचर 33 डिग्री से ज्यादा हुआ तो फीमेल ज्यादा होंगे, फीमेल ही होंगे बल्कि सारे एग. और अगर टेम्परेचर 28 से कम हुआ तो मेल्स होंगे. और अगर 28 से 33 की रेंज हुई बीच की, तो इक्वल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे. अब यहां भी प्रॉब्लम है कि सर अगर मान लो ओड नंबर हो एग्स में 7 या 9 तो कैसे होगा? तो जिस तरफ टेम्परेचर रेंज की तरफ जो ज्यादा है बच्चे, वो ज्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं. तो टेम्परेचर इज डिसाइडिंग which organism is going to produce, whether sub will be a male or female.
Don't go in that much detail, बच्चे. Don't go for the temperature, values. Just learn the rough idea that at high temperature it will give rise to females, and at low temperature it will give rise to. Next, there is a lizard named as Agama agama. Biological names consist of two words. आपने पढ़ा होगा 9th में. Generic name and specific epithet. पढ़ा था ना? It's a lizard. Exact opposite है. At high temperature it will give rise to males, and at low temperature it will give rise to females. इसमें क्या था बच्चे? एक का लर्न करें, इसलिए टर्टल का लर्न करें, लिजर्ड का उल्टा है. इसमें हाई टेम्परेचर पर फीमेल ज्यादा थे, इसमें हाई टेम्परेचर पर मेल्स. ठीक है. क्रायोजिमा पिक्टा. नेक्स्ट, स्नेल. ये आपके सिलेबस में एनसीईआरटी बुक में जरूर पढ़ें इसे, स्नेल्स वाले एग्जांपल को. कुछ भी नहीं है पढ़ने में, एक सिंपल सी लाइन है. स्नेल्स कैन चेंज देयर जेंडर एट एनी टाइम ऑफ देयर लाइफ साइकिल. कभी भी चेंज कर लेते हैं बच्चे, ठीक है, जब मन करता है. स्नेल्स का है ये एक लाइन एनसीईआरटी बुक में स्पेशली मेंशन है. इन स्नेल्स दे कैन चेंज देयर जेंडर एट एनी टाइम. एनसीईआरटी बुक नहीं है सर ये. हाँ, सबसे अच्छी बुक आपके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी है. चाहे आप कोई भी अच्छी बुक रेफर कर रहे हैं, उससे अच्छी बुक कोई नहीं है. चाहे फिजिक्स पढ़ना चाहिए, चाहे केमिस्ट्री और चाहे बायोलॉजी, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा. पहले उसे पढ़ें, उसके बाद जो भी बुक आप देखना चाहें. दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस. तो स्नेल्स में क्या है? दे कैन चेंज देयर जेंडर एनी टाइम ऑफ देयर लाइफ साइकिल. इसके अलावा भी और कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बोनेलिया एक मोलस्क है. जब मेल्स होते हैं तो वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, और जब फीमेल पास होती है तो मेल्स में. तो ये एक एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन है. तो इन्वायरमेंट पर, सराउंडिंग्स पर डिपेंड कर रहा है कि एक इंडिविजुअल का, एक यंग वन का सेक्स क्या होगा, वेदर दैट इंडिविजुअल. क्योंकि बच्चे किसी और जीन से कुछ लेना देना नहीं है, किसी भी टाइम पर चेंज कर लेता अपने जेंडर. नहीं, बिल्कुल. जीन अगर आ जाए बच्चे तो फिक्स रहेगा. अगर जीन में कोई भी चेंज आया, दैट विल लीड्स टू वेरिएशंस, दैट विल लीड्स टू म्यूटेशंस बेटा. सेकेंड, बिल्कुल, जेनिक डिटर्मिनेशन. जेनिक मीन्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल. There is extra chromosomal material present in bacteria, which is known as plasmid. In 9th class, when you draw the structure of prokaryotic cell, then there is a circular chromosomal DNA is present in the bacterial cell, prokaryotic cell, that is known as plasmid. The bacteria which have a plasmid is known as F positive, and which do not have that plasmid are known as S. Main DNA नहीं है, extra chromosomal DNA है. And on this basis, that is genic determination. So क्या बोलते हैं? Genic. Next, maize. Maize मक्की. It has very, separate genes for male as well as for female. दोनों जीन्स एक साथ होते हैं, अलग अलग है, बट जो एक्टिवेट हो जाएगा वो फ्लोरेसेंस हो जाएगी. अगर मेल वाला एक्टिवेट हो गया तो मेल फ्लोरेसेंस होगी, और अगर फीमेल वाला हो गया तो डिपेंड करेगा बस ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन पे. दैट काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन इज नोन एज जेनिक डिटर्मिनेशन. ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं. थर्ड, और जो सिलेबस का पार्ट है और जो डिटेल में पढ़ना है, दैट इज क्रोमोसोमल. एक्चुअल में सेक्स डिटर्मिनेशन 10th क्लास में वो सिर्फ क्रोमोसोमल ही है, बट स्नेल के बारे में एक लाइन दी गई है एनसीईआरटी में. ठीक है, टर्टल, रेप्टाइल्स के बारे में भी लाइन दी गई है. तो टर्टल्स और जो लिजर्ड है वो रेप्टाइल्स का ही पार्ट है बेटा, दे आर रेप्टाइल्स. तो थर्ड इज क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन. In humans, specialized chromosomes are there, which are known as sex chromosomes or idiosomes or
allosomes. A specialized set of chromosomes which determine the sex of an individual is known as allosomes or sex chromosomes. कुछ एक स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चे जो एक इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमिन करते हैं, एंड दोज क्रोमोसोम्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स और ईडियो क्रोमोसोम्स और ईडियोसोम्स सिंपली. ह्यूमन बीइंग्स हैव 46 क्रोमोसोम्स बच्चे. Normal cell has 46 chromosomes, 23 came from mother and 23 came from father. Out of those 46, 44, that is 22 pairs are normal chromosomes. And the normal chromosomes other than sex chromosomes are known as autosomes. कोई पूछ ले बच्चे autosomes क्या है? Chromosomes other than sex chromosomes are known as autosomes. Sex chromosomes को छोड़कर जो बाकी क्रोमोसोम बचे उन्हें क्या बोलते हैं? एलोसोम्स क्या होते हैं अनुश्री, अंश खुराना? बताएं बेटा. आप स्पेक्स यूज करते हैं? दिखाई दे रहा बोर्ड पर? तो आगे आए सब. सर रिक्वेस्ट नाम का शब्द जानते हैं? तो करें ना सर, इस्तेमाल करें उसे. सर जी के पीछे चले जाए आप. तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है ना दोनों लाइटें? बहुत बढ़िया. नो इश्यूज बेटा. पर बेटा आप कोशिश तो कर सकते थे ना कि सर कहां पढ़ना लिखना, कहां तकलीफ दे रहा हूं शरीर को अपने, है ना? जबरदस्त बच्चे हैं भाई. So you have invades
The last pair will be identical, that is X and X. One more thing which I want to clear here. There are different type of chromosomes, bachche. Different type of chromosomal inheritance is there. When you go in +2 and if you take biology, in genetics chapter you will study it. There's XX and XY, that is the case of males, human beings. There is a case XX and XO. There is a case ZX and ZZ. These are the different chromosomal inheritance. आप उसमें सिर्फ एक फॉर्म पढ़ रहे हैं 10th क्लास में. That is simply in case of humans, and human beings have two type of sex chromosomes, X and Y. ठीक है? In females, both sex chromosomes are identical, that is XX, and in males, that is X and these are the parents. अब यहाँ फिक्स है बच्चे, ये फीमेल पेरेंट है और ये मेल पेरेंट है. ये फीमेल का साइन है और ये मेल. They'll form gametes after gametogenesis, हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में, है ना? फीमेल विल फॉर्म, नहीं पढ़ा? इस पैर में से पहले आधे अलग होंगे. इधर ध्यान दे, सभी लिखने का पूरा समय मिलेगा तुम्हें. इधर ध्यान दो. ये पहला पेयर है बच्चे, ये पहले पेयर है 22. इसमें से 22 क्रोमोसोम एक तरफ आ जाएंगे, 22 लास्ट पेयर. मैंने बच्चे पहले भी समझाया था तुम्हें, लॉ ऑफ पेयर्ड अरेंज में एक पेयर के क्रोमोसोम अलग होते हैं. ऐसा नहीं कि पहले 23 से एक चले गए दूसरे 23 अलग, ऐसा नहीं है. हर एक पेयर में से एक क्रोमोसोम जाएगा एक पर्टिकुलर गैमेट में. तो इस 44 में से 22 इधर, 22 इधर, X. आप यहां गैमेट्स का नाम नहीं लिख सकते. क्यों? यहां मेल और फीमेल वेल डिफाइंड है बेटा. ये फीमेल पेरेंट है और ये, तो ये क्या बनेंगे? ऑब्वियस सी बात है, एगो भाई. फीमेल गैमेट इज नोन एज एगोलोगम. नेक्स्ट. Out of these 44, 22 comes in one gamete and other 22 will goes in another one. Plus X chromosome go in one and Y and that is. और बच्चे ये ऐसा क्वेश्चन है जो तुमसे पिछले चैप्टर में पूछा गया था. How sperm and ovum are genetically different. Ovum are of one type only. Ovum सिर्फ एक टाइप का है, उसके पास सिर्फ एक तरह का सेक्स क्रोमोसोम हो सकता है, that is X. जबकि स्पर्म दो तरह के होते हैं. One is having X sex chromosome and another one is having, जबकि ओवम सिर्फ एक तरह का होता है. It only composed of or consists of X chromosome. जबकि स्पर्म के पास दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम हो सकते हैं, X भी और. इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी. दीपांशु, फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? पता? पढ़ा है चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन क्या होता है? चलिए बता दो, छोड़ सब कुछ. पता? लाइफ प्रोसेस क्या होता है? बायोलॉजी क्या होता है? बाकी सारी दुनिया जो मैं पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स क्या होती है? अच्छा, मैं बायोलॉजी पढ़ा. चल बायोलॉजी क्या होती है बता. पता? फिर भी पढ़ रहा है, जबरदस्त आदमी में. अंश जी, क्या होती है बेटा बायोलॉजी? एक टाइप की सर एक नीड दे रखे हैं सब्जेक्ट जिसके अंदर ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स और मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिफिक पार्ट्स को डिफाइन करने के लिए एक सब्जेक्ट. माइक्रोऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं करते सर. सारे ऑर्गेनिजम्स और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी. बायो वर्ड बायो से लिया गया, बायोस मींस लाइफ और लॉजी मींस लोकस, टू स्टडी. टू स्टडी लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी. पांचू जी थोड़ा बहुत पढ़ गया अगर भाई, और मेडिकली लियो बेटा, ठीक है, उसमें बायोलॉजी नहीं होती. फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली बात है बच्चे, गैमीट्स बने हैं तो गैमीट्स का फ्यूजन होगा एंड विल गो विद प्रोबेबिलिटी. हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे. 22 and 22 will make, फिर से दोबारा डिप्लॉयड सेल बन गई बच्चे. पहले आधा आधा था,
अब मिलकर पूरा हो गया। एक्स एंड एक्स क्या बनेगा? बेबी गर्ल। यहां F1 जनरेशन इस्तेमाल नहीं करनी, वो मेंडल के क्रॉस में था। यहां F1 हाइपरजनी नहीं है, ठीक है? और हम पहली तो जनी नहीं है बेटा अपने माँ बाप। नेक्स्ट, this gamete or this ovum can fuse with Y sir। अभी कहाँ भाई? अदर gamete है 44 plus 22 plus क्या? 22 will come from here and 22 will come from here। 44 X and Y, that will be a baby boy। Next, there is a probability that this gamete will fuse with baby girl, girl child। तो क्या रेशियो है बच्चे? फिनोटाइपिक रेशियो है 2:2, that is 1 ratio बेबी बॉय और बेबी, दो जो है बेबी बॉय और बच्चे, दो बेबी गर्ल के चांसेस हैं। तो 50% चांस है that a person is having a baby boy or baby। किस पर डिपेंडेंट कर रहा है जेंडर? सिर्फ इस पर बेटा। इसके पास है वो क्रोमोसोम जो एक जेंडर मेल बना सकता है, फीमेल के पास तो वो है ही नहीं। लेकिन अगर आप कभी अपने फादर या मदर से बात करें तो पहले के जमाने में जो लोग थे वो अगर एक फीमेल को लड़कियां पैदा हो रही है तो अपनी बहू को दोष देते थे। पुराने टाइम की पिक्चरें देखें तब भी ऐसी था। एक लेडी है, सास है बड़ी क्रूर सी, अपनी बहू को बाहर निकाल रही है घर से, उसने 3 बेटियों को जन्म दे दिया। लेकिन एक्चुअल में किसे निकालना चाहिए बाहर? हम इस तरह के सब सोसाइटी में जीते जिसे तुम चेंज कर सकते हो। तुम फ्यूचर हमारे देश का, हमारी सोसाइटी का, अपने कल्चर का, इसीलिए तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमंस। आपकी बुक में बच्चे 44 और ये नहीं लिखा होगा, पर आप ये लिखें, मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है। आप चाहे तो XX और XY से भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बुक की बात है, मैं बुक को डिनाई नहीं करूंगा, बट ये ज्यादा बेहतर है, मेरा सलाह है आपको। तो ये है हाउ सेक्स इज डिटरमिन्ड इन केस ऑफ ह्यूमंस। ये फ्लो चार्ट बनाया, उसके बारे में लिखिए, ठीक है? मेल हैज दिस क्रोमोसोम, दिस पेयर, फीमेल has this and male has this। It will form gametes, then 2 type of gametes are formed in case of males and 1 type of gamete is formed। पैराग्राफ ना लिखे, पॉइंट्स बनाए, that will be much better than your paragraphs। कहानी ना लिखे, पॉइंट्स बनाए, फ्लो चार्ट बनाए, that will be much better। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा तो चांसेस, प्रोबेबिलिटी है कि 50% चांसेस है will be a baby boy और 50% is a baby girl। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम है, 1:1। क्या नाम आपका? विनीत। क्या होता है जीनोटाइपिक रेशियो? उतारने आप इसको साथ साथ उतारना चाहिए। हाँ जी, जीनोटाइपिक रेशियो बस गया है ना? अभी नहीं बचा, मेरे साथ ही जाना तुम्हें, लास्ट में जा सकते हैं। क्या है जीनोटाइप? क्या अगर छोड़ रेशियो तो बड़ा भारी हो गया। जीनोटाइप क्या होता है? हाँ जी, चैप्टर कौन सा चल रहा है? हेरिडिटी क्या होती है? हाँ जी, हेरिडिटी। बहुत बड़ा है चैप्टर। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? बेटा पेपर आने वाले हैं मेरे बच्चे, पहले 4 दिन दिवाली में बीत जाएंगे, पटाखे चलाएंगे नहीं? क्यों है? तेरी क्या नजरदार है?
दिवाली आ रही पटाखे चल रहे बनते हैं, पढ़ तो नहीं पर कुछ तो करें क्या? पढ़ा करें बेटा, जितना आसान आप इस चैप्टर को समझ रहे उतना है नहीं। अगर आपको हेरेडिटरी इवोल्यूशन का डेफिनेशन नहीं पता बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप होमोजाइगस हेटेरोजाइगस स्टेट के बारे में नहीं जानते, उसके बिना ये नहीं होगा मेरे बच्चे, ठीक है? तो पढ़े बेटा, बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी जा रहा हूँ सब लेके, अभी जा रहा हूँ। जल्दी करो, मैं लेके जाना तुम्हें बेटा, मैं मल्टीपल रीडिंग करवाने वाला था। चलो ठीक है जी, हैप्पी दिवाली, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, पटाखे चलाने तो चला लेना, ऐसी कोई खास बात नहीं है, दिवाली एक ही साथ बार आती है एक साथ। हाँ जी सर, श्योर। बेटा एक टॉपिक बचा, हाय सर। ओके बच्चों, हैप्पी दिवाली, मे गॉड ब्लेस यू।